নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন এই অনুষ্ঠানটি কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন এই অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত আছে তিনিগৰাকীকৈ আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি আৰু তেখেতসকল হ'ল ইমেজ কনসালটেন্সিৰ ফালৰ পৰা এয়া মোৰ বাওঁফালে আছে মিষ্টাৰ সুজিত কুমাৰ পাঠক নমস্কাৰ আৰু স্পাৰ্টা Institute of Technology and Management Chairman Mr. Himanshu Sharma নমস্কাৰ আৰু ইমেজ কনসালটেন্সিৰ ফালৰ পৰা আছে শ্ৰীমতী জন্দিতা এম বৰুৱা তিনিগৰাকী আমাৰ অতিথিবৃন্দক ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি উচ্চ শিক্ষা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম উচ্চ শিক্ষা সম্পৰ্কে মানে দশম শ্ৰেণীৰ পিছত 10ৰ পিছত বা 12ৰ পিছত কেনেকৈনো ক'ত বাহিৰত পঢ়িবলৈ যাব পাৰি বা এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি বিচাৰে কেনেকৈ তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে দৰ্শকসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা অতিথিবৃন্দৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে বিশেষকৈ 10ৰ পিছত ক'ত আপুনি পঢ়িবলৈ যাব কি লাইন ল'ব মিষ্টাৰ সুজিত কুমাৰ পাঠক ইমেজ কনসালটেন্সিৰ ফালৰ পৰা আপুনি বহু বছৰ ধৰি এই সুবিধা আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক দি আছে গতিকে আপুনি ইমেজ কনসালটেন্সি সম্পৰ্কে কওক যে আৰু তাত কেনেকৈ আপোনালোকে সুবিধা দিয়ে ষ্টুডেণ্টসকলক जी पिछले हम लोग 8 साल से इमेज कंसल्टेंसी गुवाहाटी में चला रहे हैं इमेज कंसल्टेंसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग स्टूडेंट्स का सबसे पहले उनका हम लोग माइंड मैपिंग करते हैं कि बच्चे का क्या नीड है उसको किस तरीके से हम लोग उनको देखें स्टूडेंट का मतलब परसेंटेज कितना है 10th में 12th में या ग्रेजुएशन में उनको कौन सा सब्जेक्ट से वो किए हैं आर्ट्स है साइंस है कॉमर्स है उनके लिए क्या अच्छा होगा प्रॉपर होगा जिसको हायर एजुकेशन में जाएँ एडमिशन ले जहाँ से उनका कैरियर अच्छा हो हम लोग इसको देखते हैं उसका माइंड मैपिंग करके उनका नीड एनालिसिस करके बजट देख के पेरेंट्स का ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पैसा ना एक्सपेंस हो जाए पेरेंट्स का लो बजट में अच्छा कॉलेज मिले इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं और हमारे पास काफ़ी इंडिया और एब्रोड के मैक्सिमम कॉलेजों से बहुत ज़्यादा कॉलेजों से हम लोग का टाई अप है टाई अप करने से पहले हम लोग खुद कॉलेज को विजिट करते हैं कॉलेज में जाके देखते हैं वहाँ पे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कॉलेज का फैकल्टी देखते हैं कॉलेज का लैब लेबोरेटरी देखते हैं कॉलेज का बुक्स कैसा है कॉलेज का फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट लोगों से कॉलेज का कि अगर कॉलेज अच्छा होता है जब भी हम लोग कॉलेज से टाई अप करते हैं इमेज कंसल्टेंसी टाई अप करती है और फिर उस कॉलेज के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं उनको काम करते हैं और उनको स्टूडेंट हम लोग देते हैं कॉलेज को हम लोग ये भी कहते हैं कि भैया हमारे स्टूडेंट जो नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं इनका एक स्पेशल ध्यान दिया जाए जी हाँ গতিকে বৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে আহিব পাৰে ইমেজ কনসালটেন্সিলৈ আৰু তাত ফ্ৰী গাইডেন্স দিয়া হয় নিশ্চয় হয় নে নহয় ফ্ৰী গাইডেন্স দিবৰ কাৰণে বহুতো তাত ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ গাইড কৰিব আপোনালোকক আৰু বাহিৰত পঢ়িবলৈ হ'লে আমি বহুতৰে মন থাকে যে আমি বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যাম মানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে সকলোৰে মন যায় পঢ়িবলৈ কিন্তু সুবিধা পোৱা নাযায় বা কেনেকৈ যাম কাৰ জৰিয়তে যাম কোনোবাই চিনাকি কৰি দিলেও ভাল হয় তেনেকুৱা কিন্তু সেইখিনিৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ সুবিধা আগবঢ়ায় জি আজি আমাৰ মাজত আছে হিমাংশু শৰ্মা তেখেত হ'ল আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ চিফ গেষ্ট আৰু স্পাৰ্টা ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি এণ্ড মেনেজমেণ্টৰ তেখেত চেয়াৰমেন তেখেত নিজেও এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰ গতিকে আপুনি বিদেশত বহুতো কাণ্ট্ৰিত কাম কৰিছে নহয় জানো গতিকে তাত কেনেকুৱা আপুনি দেখিছে তাত আমাৰ ষ্টুডেণ্টক দেখিছেনে কেতিয়াবা यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पे मिला है कि नहीं वहाँ पे देखिए बाहर के कंट्री में बाहर की कंट्रीज में यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के तो बहुत स्टूडेंट्स हैं मैं चाइना में करीब 8 महीने रहा हूँ तो चाइना में हाँ जी तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स तो मिलते ही रहते थे तो उनसे काफ़ी बातचीत भी होती थी और आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई दे हैव शिफ्टेड टू चाइना वाई दे आर कमिंग लाइक मिस्टर सुजीत सेड कि मेडिकल में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट से तो वो तो चाइना में मिलते ही हैं और आई हैव हैड द फॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस टॉकिंग टू देम एंड गेटिंग देयर एक्सपीरियंसेस और जब मैं चाइना में था उस समय मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था एक्चुअली आई वाज वर्किंग विद सत्यम कंप्यूटर्स तो लगभग 4-5 साल काम करने के बाद आई थॉट ऑफ शिफ्टिंग बैक टू माय कंट्री एंड डूइंग समथिंग बिकॉज बचपन से पैशन था एजुकेशन में कुछ करना है इसलिए मैं वापस आया और मैं बेसिकली खुद भी इंजीनियर हूँ मेरी वाइफ भी इंजीनियर है
So that is why I decided to start with an engineering college in Bhopal. और मुझे पता है वो भारत सरकार 108 और माने प्रोग्राम डिजाइन अपनी करिছিলে सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन ना हो जानो 108 एम्बुलेंस एम्बुलेंस सेवा है ना that was way back in Hyderabad. वो मेरा पहला लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था 108 एम्बुलेंस. and I feel very proud to see कि आज 108 एम्बुलेंस is almost everywhere in the country. So these are some of the things that I've been doing. You know, it's a kind of social service, giving back to the society what you've received. तो हमेशा से एक मेरी मकसद रहा है and I think education is the best way to return back to the society. Yes. So that is why I came back and started this engineering college. Sparta. ঠিক আছে গতিকে আজি আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত পাইছোঁ গতিকে যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কে যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং সম্পৰ্কে কেনেকৈনো পঢ়িব কেনেকৈনো নিজকে তৈয়াৰ কৰিব সেই সম্পৰ্কে যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় কথা পাতিব পাৰে হিমাংশু শৰ্মাৰ সৈতে আৰু আমাৰ সৈতে আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আৰু এগৰাকী আমাৰ আজিৰ অতিথি আছে শ্ৰীমতী জন্দিতা এম বৰুৱা জন্দিতা এম বৰুৱা আপুনি ইমেজ কনসালটেন্সিৰ সৈতে জড়িত কেবা বছৰ ধৰি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত আপুনি মই আপোনাৰ ইয়াতে লাষ্ট 4 ইয়াৰ্স নিয়াৰ अबाउट মই জড়িত ইয়াতে মই কৰি আছো ইয়াতে লাইক ফাৰ্স্ট আই হেভ জয়েন্ড এজ এ কাউন্সিলৰ আপ হিয়াৰ সো তাৰ পিছত মই নিজে গুটেইখিনি চাইছিলো সোৱাৰ পাছত আই হেভ বিন প্ৰমোটেড এজ এন অফিচ ইনচাৰ্জ সো এতিয়া মোৰ আন্ডাৰটো বহুত গিজনি লাইক কাউন্সিলৰ কৰে মানে হেৰি কৰি আছে আপোনাৰ লাইক কাউন্সেলিং কৰে টেলিকলিং কৰা হয় আমাৰ ইয়াতে সো যেটো আমি কৰো ইয়াতে বেসিক্যালি আমি ফ্ৰী কাউন্সেলিং আমি প্ৰভাইড কৰো ষ্টুডেন্টছ বোৰৰ কাৰণে যত পেলে ধৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ষ্টুডেন্টছ বোৰ আহে আমাৰ ইয়ালৈকে সো লাইক সবে তো ধৰক আপুনি ক'ব বিচাৰিলে সবে ফাইনান্সিয়ালি সাউন্ড নহয় সো আমি তেনেকে তেওঁলোকক মোল কৰো বা ডাইৰেকশন দিও কোনফালে তেওঁলোক কেনেকে গলে সুবিধা হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কেনেকে সহযোগ কৰিব পাৰো তেওঁলোকে নাই যেনেকে আপুনি ক'ব বিচাৰে লোন ফেসিলিটিজ আমি কেনেকে তেওঁলোকক সহায় কৰিব বিচাৰো লাইক সো তেনেকা ধৰণ আমি ফৰৱাৰ্ড কৰো প্ৰসিড কৰো আৰু যেহেতু আমাৰ লগত মিস্টাৰ হিমাংশু শৰ্মাও আছে ইয়াতে সো তেওঁলোকৰ লগতো আমি জড়িত হৈ আছো কেবা বছৰ ধৰি সুজিতা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহে পঢ়িব বিচাৰে ষ্টুডেন্ট সকলে 10ৰ পিছত আপোনালোকক যোগাযোগ কৰে নে 12ৰ পিছত যোগাযোগ কৰে এমবিবিএছ পঢ়িবলৈ হলে বা যিকোনো লাইন পঢ়িবলৈ হলে আপোনালোকে কেনেকৈ তেওঁলোকক সহায় কৰে देखिए जैसे स्टूडेंट लोग हमारे पास आता है 10th के बाद में आता है भाई 10th के बाद में उनको क्या चाहिए फ्यूचर के लिए तो हम लोग उसमें ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को चाहिए क्या बेसिकली उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं स्टूडेंट का जब हम लोग साइकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं वर्ल्डर विभिन्न राष्ट्र अपना आसेने विभिन्न कंट्रीत आसेने विभिन्न कंट्री যোগাযোগ हाँ माने जी हकले जते पढ़िब नखुजक किया हाँ तो आपनके हे तात जोगाजोग करे इंडिया में तो हर जगह है ही हमारे पास सब जगह के लिए हम लोग करते हैं इंडिया के लिए इंडिया के बाहर हम लोग चाइना करते हैं रशिया करते हैं चाइना रशिया यूक्रेन करते हैं फिलीपींस करते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर और गल्फ कंट्री में हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट अपना भेजते हैं यूएस यूके भी है और जीबुर इंस्टीट्यूट আছে सब गवर्नमेंट अंडर है हाँ मतलब जितना भी इंस्टीट्यूट होता है वो तो यूनिवर्सिटी जो होती है गवर्नमेंट से ही अप्रूव्ड होती है ऐसा तो होता नहीं है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का होता है प्राइवेट कॉलेजेस उसमें होते हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है यूजीसी से रिकॉग्नाइज होता है तो वहाँ हम लोग भेजते हैं सबसे पहले क्या है कि मतलब किसी भी कॉलेज को स्टूडेंट देने से पहले हम ये एश्योर्ड हो जाते हैं कि कॉलेज कैसा है कॉलेज अगर बहुत बढ़िया होता है कॉलेज में क्वालिटी होता है फीडबैक स्टूडेंट्स का वहाँ अच्छा होता है सबसे पहला हम लोग ये भी देखते हैं कि प्लेसमेंट ट्रैक कैसा है कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी हायर एजुकेशन कॉलेजर रेकॉर्ड चाइने आगर रेकॉर्ड केनेकुआ जे किमान ভাল स्टूडेंट ওলাইছে তাৰ পৰা হেতু চাইনে না চাই আগতে जी ये हम लोग देखते हैं रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं क्योंकि जरूरी है ये देखना नहीं हाँ रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं रिकॉर्ड इसलिए देखना पड़ता है ना कि अब वहाँ पे सपोज कोई कॉलेज है हमने एक स्टूडेंट भेजा उनके पेरेंट्स बहुत पता नहीं कहाँ से पैसा लाया कैसे कितना उन्होंने मेहनत किया है पैसा लगा अब पैसा के साथ साथ कैरियर है बच्चे का कैरियर है करियर एक बार मतलब जो लेना है वो एक ही बार लेना है दोबारा नहीं मिलता है उसको तो उस समय जब हम बच्चा भेजते हैं प्लेस करते हैं किसी भी कॉलेज में तो देखते हैं कि उनका फैकल्टी कैसा है साथ साथ प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है तभी हम लोग उस कॉलेज को देते हैं प्रोवाइड करते हैं जैसे आज डेट में काफ़ी कॉलेज है उसमें से मध्य प्रदेश में सिंगल एक कॉलेज के लिए हम लोग काम करते हैं स्पार्टा के लिए हाँ एमपी में है ये एमपी में है भोपाल में है तो स्पार्टा जब मैं गया विजिट करने तो मैं एज ए स्पाई गया था वहाँ विजिट करने इन लोगों को मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं आया हूँ कॉलेज विजिट करने मैं गया एक स्टूडेंट एक पेरेंट्स के साथ में गया वहाँ पे मतलब ऐसा हम लोग खुद गए वहाँ पे चारों ओर घूमे सब कुछ देखा कैसे है क्या है हॉस्टल में गया हॉस्टल देखा क्लासरूम में एक बार बैठा मैं मतलब जब पूरा सेटिस्फैक्शन हो गया तब इन लोगों को मालूम चला कि इमेज कंसल्टेंसी से मिस्टर पाठक आए हैं आमाला आमाला এটা ফোন আহিছে আমি ফোনটো লৈ লওঁ हेलो हेलो
হয় নমস্কাৰ আপুনি কোনে কৈছে মই পংকজ দাসে কৈছো মালিকৰ পৰা শ্ৰী দত্ত কওকচোন আপোনাৰ কি প্ৰশ্ন আছে কি সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰে বৰ্তমান ডিসটেন্স এডুকেশনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো কি মানে কোনটো সবতকৈ বেষ্ট হয় কোনটো বিষয় আটাইতকৈ বেষ্ট হয় हां डिस्टेंस एजुकेशन नहीं आप डिस्टेंस एजुकेशन में किस कोर्स के लिए आप पूछना चाहते हैं मैं ये मास्टर डिग्री के लिए एमए मास्टर डिग्री के लिए एमए तो इग्नो है अच्छा डिस्टेंस एजुकेशन में कराता है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है इग्नो से आप कर सकते हैं आपका यहाँ पे असम के अंदर में के हंडिक भी है के हंडिक यहाँ से भी आपको डिस्टेंस एजुकेशन में होता है ऐसे बहुत से एजुकेशन यूनिवर्सिटी है कॉलेजेज हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन में करवाते हैं एक्चुअली मेरा नॉलेज में एक है बांदलखंड यूनिवर्सिटी ये झांसी का ये कैसा होगा कौन सा यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हाँ ये झांसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना हाँ हाँ ठीक है इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या मतलब वहाँ से अगर मैं कोर्स करूँ तो क्या तो फिर कैसा होगा मेरे लिए हाँ अच्छा रहेगा आप कोर्स करते हैं कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा लेते हैं कितना अच्छा स्टडी करते हैं अपना आपकी अगर स्टडी अच्छी होगी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उसको आपको बेनिफिट मिलेगा হয় ধন্যবাদ শ্ৰী দত্ত कोई कैंपस है क्या बांडल यूनिवर्सिटी का जी बांडल यूनिवर्सिटी का गुवाहाटी में कोई कैंपस नहीं नहीं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोई कैंपस नहीं होता है গুৱাহাটীৰ একো নাই नहीं नहीं ধন্যবাদ শ্ৰী দত্ত আপুনি আৰু সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় ইমেজ কনসালটেন্সিলৈ আহিব পাৰে তাত ফ্ৰী গাইডেন্স দিয়া হয় যেহেতু বহুতো শিক্ষাৰ্থী গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে আহিব পাৰে অভিভাৱকৰ সৈতে আহিব পাৰে আৰু কেনেকৈনো ক'ত পঢ়িব বিচাৰিছে সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ জানিব পাৰে আৰু কৈছে জন্দিতা এম বৰুৱাই কৈছে যে তেওঁলোকে ফ্ৰী কাউন্সেলিং কৰে গতিকে ভালদৰে কথা পাতি আপুনি জানিব পাৰিব আমি কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এইবাৰ মই শ্ৰী শৰ্মা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি নিজে এগৰাকী ইমান ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ হ'লে ষ্টুডেণ্টসকলে নিজকে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব हाँ हाँ इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अब मतलब खुद को कैसे तैयार करे एक स्टूडेंट देखिए इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ स्टडी अगर सबसे पहला तो जो लोग वाकई में जो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग दे शुड ओनली ऑप्ट फॉर इट बिकॉज अगर 10+2 में आप मैथ्स सब्जेक्ट ले रहे हैं इफ यू आर गोइंग फॉर मैथ्स इट डजंट मीन कि यू हैव ओनली वन ऑप्शन देयर आर वेरियस ऑप्शंस और अब तो बहुत सारे नए नए कोर्सेज नए नए डिग्रीज आ गए हैं so if you are actually interested in engineering then only you should opt for it because if you will go half-heartedly then you will not get this results okay amala aru eta phone ahise phone tu lele so hello namaskar apni kone koise মই সীমা কৈছো বেলতলা পৰা সীমা বেলতলা পৰা কওকচোন মই জানিব বিচাৰিছো মানে মই বৰ্তমান বিকম ষ্টুডেন্ট হয় বিকম 5th সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্ট হয় বিকম 6th সেমিষ্টাৰ okay মই বিকম মানে 5th সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্ট হয় বৰ্তমান মই জানিব বিচাৰিছো মানে এমবিএ কোড কৰিলে ভাল হ'ব অসমত নে অসমৰ বাহিৰত কৰিলে एमबीए कोड কৰিলে ভাল হ'ব সুজিত দা एमबीए आप 6th सेमेस्टर में है आपका एग्जाम हो गया क्या नहीं अभी तो मैं फिलहाल तो 5th में पहुंची हूँ अभी 4th का ठीक है एमबीए करने के लिए क्या है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उसका एग्जामिनेशन भी होता है जैसे सिम्बोसिस लाइक ये सब है वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन भी होता है काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं आपको दिल्ली में हरियाणा में मध्य प्रदेश में वहाँ पे मतलब एग्जामिनेशन के थ्रू भी होता है और डायरेक्ट भी होता है सबसे पहले तो आप ऐसा कह रहे हैं कि आप कैट मैट का प्रिपरेशन करें ठीक है बेटर ये होगा तो मैं अभी कैट का कोचिंग करने वाली हूँ जी आप कैट मैट का प्रिपरेशन करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा कैट मैट प्रिपरेशन करने के बाद में जो इनका एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन को भी आप दें सिम्बोसिस का हो गया सेंट जेवियर्स का हो गया एक्सेलआरआई का हो गया ये सब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम दे सकते हैं अगर उसमें नहीं होता है आपको तो कैटमेट में अगर अच्छा रैंकिंग है परसेंटाइल अच्छा है तो आपके अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं फिलहाल तो मैंने सुना है कि मतलब एसआरएम यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी कैसा होगा सारे यूनिवर्सिटी अच्छे होते हैं पढ़ाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी पढ़ाई कर रही हैं सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है और ज़्यादा आपको और भी कुछ नॉलेज लेना हो तो आपका बेलतला में रहती है मेरा ऑफिस वायरलेस पे है आप आइए ऑफिस में आपको बताऊंगा मैं सारा कुछ आपको और भी आपको गाइडलाइन दे दूंगा फ्री गाइडलाइन हम लोग देते हैं अभी जो दिखाया गया नंबर वो नंबर मतलब उसमें कांटेक्ट कर पाएंगे ना उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं वायरलेस पे बीएसएनएल ऑफिस है उसके अपोजिट वाले बाइलेन में मेरा ऑफिस है ধন্যবাদ মই ফোন নম্বৰটো কৈ দিছোঁ এইখিনিতে সকলোৰে কাৰণে 9435344388 9435344388 এই নম্বৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু টিভি স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে আপোনালোকে গতিকে ইমেজ কনসালটেন্সিৰ নম্বৰ ইমেজ কনসালটেন্সিলৈ আপুনি আহি সবিশেষ জানিব পাৰিব আৰু ফ্ৰী কাউন্সেলিং কৰা হয় কৈছে জন্দিতাই কৈছে আৰু সুজিতাই কৈছে গতিকে আৰু
MBA ক'ত কৰা হ'ব ক'ত কৰিলে ভাল হ'ব আসলে পঢ়া শুনাটো নিজৰ কথা নহয় জানো ভালদৰে পঢ়িলে সকলো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ভাল সকলো ফেকাল্টিজ ভাল নহয় জানো कुछ होता है बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट को भी खुद अपना करना पड़ता है কিন্তু अभी जैसे इस আজিকালি स्टूडेंट যেহেতु ने फोन किया কম্পিটিশনৰ যুগ আছে যুগ হৈছে গতিকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰাটো খুব জৰুৰী स्टडी सबसे पहले बात है कि आप जो भी करना चाहते हैं आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए निश्चय आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको PCM अच्छा होना चाहिए आपका 12th में परसेंटेज अच्छे होने चाहिए आपको मेडिकल करना है PCB आपका अच्छा होना चाहिए परसेंटेज अच्छा होना चाहिए ये जरूरी है इसके बाद ही आप अगर सपोज आप इंडिया में एडमिशन लेते हो गवर्नमेंट में ले रहे हो प्राइवेट में ले रहे हो या एब्रोड जाते हो चाहे फॉरेन जाते हो कहीं भी जाते हो स्टडी तो खुद करना पड़ेगा स्टडी खुद करना पड़ेगा स्टडी करना पड़ेगा कॉलेज में फैकल्टी पढ़ाती हैं सब कुछ होता है लेकिन खुद प्रिपरेशन करना पड़ेगा और जब तक आपका बेस आज के डेट में बहुत ऐसा भी हो रहा है कि इंडिया में जैसे सपोज इंजीनियरिंग के लिए मैनेजमेंट के लिए मेडिकल के लिए बहुत कॉलेजेस हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो जिसको आप प्रीमियम कॉलेजेस कर सकती हैं उसमें पैसा मतलब उनका एक अलग मैनेजमेंट कोटे का सीट होता है उसमें ज़्यादा पैसा लगता है स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है पेरेंट्स लोग एडमिशन दिलवा देते हैं लेकिन होता क्या है अल्टीमेटली ये होता है कि बच्चे का बेस कमजोर है और वहाँ पैसा देकर एडमिशन लिया और फिर वहाँ पे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो गार्जियन को पेरेंट्स को ये भी करना चाहिए जहाँ तक मेरा थिंकिंग है कि सबसे पहले जब बच्चे के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं उनका एडमिशन करवाना है तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बजट उनका क्या है और बजट चाहे जितना भी हो आप एक्सपेंस कम करें कॉस्टिंग कम करें अगर किसी को सपोज कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग का एडमिशन लेना चाहता है 10 लाख का बजट का उसको कॉलेज में आमाला আৰু এটা ফোন আছে ফোনটো লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে আপুনি মই তেজপুৰৰ পৰা কৈছো লন্দীপ মহন্তই তেজপুৰৰ পৰা ৰন্দীপ মহন্ত কওক আপোনাৰ কি জানিবলগীয়া আছে সুধক মই এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছো মানে মেকানিকেলত তাৰপৰা মই বিচাৰিছো যে মই তাৰপিছত MBA কৰিব বিচাৰিছো जी MBA কৰিব বিচাৰিছে आपका कौन सा सेमेस्टर है কি তাৰমানে কোনটোত ভাল হ'ব মানে কোনটো ব্ৰাঞ্চত ভাল হ'ব सेमेस्टर कौन सा है आपका मेरा 4th सेमेस्टर देखिए आपको MBA करना है एंड आप मैकेनिकल से कर रहे हैं BE राइट हाँ जी हाँ तो देखिए मैकेनिकल अगर आपको MBA करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सनालिटी डिपेंड्स कि आपका पर्सनालिटी कैसा है आप अगर MBA करना चाहते हैं देयर आर मेनी ऑप्शंस देयर इज ह्यूमन रिसोर्सेज देयर इज फाइनेंस देयर इज सेल्स देयर इज मार्केटिंग बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप लोगों से बात करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं इफ़ यू कैन गो आउट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स में अगर आप कोई आइडिया शेयर करते हैं और आपके फ्रेंड्स उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं देन सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू आर वेरी गुड इन मैथ्स देन यू कैन गो फॉर फाइनेंस and if you don't like if you like making policies अगर आपके अंदर टीम लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं then you can go for HR kind of thing so it's very important for you to understand कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है आपके इंटरेस्ट क्या है क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट की ब्रांच में जाएंगे यू विल एक्सेल यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स लेकिन अगर आप किसी के कहने से या आपका फ्रेंड कोई पर्टिकुलर ब्रांच सेलेक्ट कर रहा है और इसलिए अगर आप वो ब्रांच सेलेक्ट करेंगे देन आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड चॉइस ধন্যবাদ আপোনাক আৰু ইমান সুন্দৰকৈ হিমাংশু শৰ্মা আপোনাক জনাইছে আৰু নিশ্চয় আপুনি ইমেজ কনসালটেন্সিলৈ আহিও তেখেতৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰে এক্সপাৰ্ট কাউন্সিলৰ যেহেতু গতিকে জন্দিতা মই এইবাৰ আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ইমেজ কনসালটেন্সিত আপোনালোকে কেনেকৈ কাম কৰে এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া আহিব যে বাহিৰলৈ যাব বিচাৰিছে আমাৰ ফোন এটা আছে ফোনটো লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত কথা পাতিম हेलो मैं বিজিতাই কৈছো নমস্কাৰ বিজিতা মই এবাৰ BA 5th সেম মই IRS ৰ কোচিং কৰিম বুলি ভাবিছিলো মানে ইয়াত কোচ সেন্টাৰ ভাল হ'ব কি কৰিম বুলি ভাবিছে IRS इंडियन रेलवे सर्विस आप ऑफिस आ जाइए आपको मैं बता दूंगा आप गुवाहाटी अगर आती हैं तो ऑफिस आ जाइए काफ़ी ऐसे हैं सेंटर्स हैं बहुत अच्छे सेंटर्स हैं तो सारा डिटेल्स तो आपको अभी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप समझ भी नहीं कर पाएंगे समय कम है आपके पास भी मेरे पास भी ऑफिस आ जाइए बता दूंगा হয় আমার টিভিৰ স্ক্ৰিনত যেহেতু ফোন নম্বৰ দেখা পাইছে ইমেজ কনসালটেন্সিৰ নম্বৰ তাত ফোন কৰি আপুনি সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আহিব জন্দিতা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইমেজ কনসালটেন্সিত আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীক সহায় কৰে হয় সো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি কি কৰোঁ আমাৰ এক্টিভিটিজ কিছুমান প্ল্যান কৰা হয় এভৰি ইয়াৰ লাইক যেনেকুৱা আপোনাৰ JEE এক্সাম AIPMT এক্সাম CEE এক্সাম যোনটো আপোনাৰ
কমেন্টছ হ'ব 28th and 29th of May আমি তাতে আমাৰ ইভেন্ট মেনেজমেন্টৰ থ্ৰু দি আমি ডাটা কালেকশ্যন কৰা হয় আমাৰ সো তাৰপৰা সেই ফালৰ পৰা আমি ডাটাবোৰ লৈ আমি ফিল্টাৰ কৰোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ আমি প্ৰত্যেকজন এজন এলট কৰি দিয়া হয় আমাৰ অফিচত মই নিজেও কলিং কৰোঁ আপোনাৰ তাৰ ওপৰত সো আমি তাতে কাউন্সেলিং কৰোঁ সো লাইক ওভাৰ ফোন গোটেইখিনি কথা আমি ডিটেইলছ ক'ব নোৱাৰোঁ সো আমি তেওঁলোকক আমি অফিচলৈ মাতা হয় সো তাতে ধৰক গাৰ্জেনকো মাতা হয় সো সেই হিচাপে যেনেকৈ গাৰ্জেন আৰু ষ্টুডেণ্ট আহে আমাৰ ওচৰত সো তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি কেনেকুৱা কি ধৰণত হয় লাইক ফাইনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টুডেণ্টৰ লাইক পাৰ্চেণ্টেজ কিমান সেইবোৰত বেচিছ কৰি আমি তেওঁলোকক ডিৰেকশ্যন দিওঁ কি ষ্টুডেণ্টে কোনফালে গ'লে ভাল হ'ব ধৰক যেনেকৈ আমি কৈছোঁ আমি বাহিৰতো আমি এডমিশ্যনবোৰ কৰাওঁ সো লাইক গভৰ্ণমেণ্ট কলেজেছ হয় যোনে ধৰক ইয়াতে ইণ্ডিয়াত লাইক আপোনাৰ ডনেশ্যন ছিষ্টেমটো খুবেই বেছি সো এইটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে মেক্সিমাম মেজৰিটি অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ লাইক গাৰ্জেনছ দে আৰ নট বিং এবল টু লাইক টেক এডমিশ্যনছ আপ হিয়াৰ সো আমি তেওঁলোকক কি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ কি বাহিৰলৈকে যাওক আপোনালোকে সো তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা চইচ হয় আমি সেই হিচাপে তেওঁলোকক মোল্ড আপ কৰোঁ তাতে এতিয়া কোনোবা অভিভাৱকৰ ধৰক পইচা ইমান বেছি নাই সাপোজ মই এগৰাকী গাৰ্জেন গতিকে মই কেনেকৈ কম পইसाते কেনেকৈ বাহিৰত পঢ়িবৰ কাৰণে যাব পাৰিম বা পঠিয়াব পাৰিম हाँ सबसे पहले मैं तो आपने बता दिया कि आपके पास पैसा नहीं है बहुत अच्छी बात है आज के डेट में सपोज किसी को अगर इंजीनियरिंग करना हो कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 4 साल का पैकेज 10 लाख होता है कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ 20 लाख होता है ऐसा भी कॉलेज है जहाँ पे मात्र 45,000 पर ईयर की फीस है 50,000 पर ईयर की फीस है 4 साल का फीस ओनली 2 लाख 2.5 लाख रुपया मतलब थोड़े खर्चे होते हैं 2 लाख का फीस होता है 2 लाख और मैक्सिमम लॉजिंग फूडिंग का होता है तो 4 लाख में बच्चा इंजीनियर बन सकता है बट उसमें अपने को ये देखना है कि जहाँ 4 लाख के फीस वाले कॉलेजेज हैं जैसे मध्य प्रदेश का एमपी स्टेट में फीस कम होता है लेकिन एमपी स्टेट के सारे कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं अपने को वो देखना है कि जहाँ पे सस्ते फीस वाले कॉलेजेज हैं जहाँ मैं बच्चा को भेज सकता हूँ उसमें फिल्टर करना है हम लोग उसमें फिल्टर करते हैं कि कौन सा बढ़िया कॉलेज है उसमें भेजते हैं जैसे अभी मध्य मैंने बताया आपको पहले भी कि इंजीनियरिंग के लिए हम लोग एमपी में स्पार्टा के साथ काम करते हैं काम करने का रीजन ये है कि फीस कम है बच्चे का अफोर्डेबिलिटी है वहाँ पे मतलब गार्जियनशिप बहुत बढ़िया है कॉलेज के अंदर फैकल्टी बहुत अच्छे हैं मतलब ये सब चीज़ होने के कारण हम लोग वहाँ भेजते हैं इसी तरीके से अदर स्टेट में बहुत अच्छा इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के पूरे इंडिया के डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट एरिया में हम लोग के साथ कॉलेज टाई अप है और वहाँ पे बच्चे का नीड एनालिसिस करके हम लोग भेजते हैं इवन हम तो सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है आप 15 लाख रुपया खर्च करके आप एक्सपेंस करके इंजीनियर बनो अगर आप 4 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियर बनते हो क्वालिटी एजुकेशन सेम आपको मिलता है इम्प्रूवमेंट सेम आपको आता है प्लेसमेंट आपका सेम आता है तो कोई क्या फायदा यही काम है हम लोगों का। आपको एग्जांपल दूंगा जो सुजीत जी बोल रहे हैं जी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें प्रोफेशनल कोर्स की तो सारे कॉलेज ये प्रमोट करते हैं कि हमारे यहाँ से 1000 कैंपस सिलेक्शंस हो गए या ऐसा हो गया वैसा हो गया बट स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि if a college has an overall student base of 4,000 students और वो 4,000 में से if only 1,000 are getting selected which means 75% of the students are not getting selected that is what a student should concentrate upon और वहीं अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो आई फील वेरी प्राउड कि मेरे यहाँ केवल 300 स्टूडेंट्स का इंटेक है बट आउट ऑफ दोस्त 300 स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी 75% स्टूडेंट्स प्लेस्ड और जैसा कि सुजीत जी ने बताया कि कोई कॉलेज है जो 10 लाख का पैकेज है जिसका एजुकेशन में बट मेरे यहाँ पे 4, 4.5, 5 लाख रुपए में कंप्लीट बी इंक्लूडिंग और यू नो बोर्डिंग लॉजिंग फूडिंग एवरीथिंग सो बिकॉज मेरा उद्देश्य क्या है माई टारगेट इज दैट एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल एक स्टूडेंट हो चाहे वो कहीं की किसी भी तरह का हो उसके पेरेंट्स अमीर हो या गरीब हो किसी भी सिचुएशन से आए क्वालिटी एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन जैसे इनके कॉलेज में टू टाइम चांसलर अवार्ड स्टूडेंट ले चुका है 23 टाइम मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने इनफैक्ट एमपी में रिकॉर्ड बनाया 95% मार्क्स स्कोर किए हैं इंजीनियरिंग में व्हिच इज अ रिकॉर्ड इन एमपी एमपीत আপোনাৰ 231 খন আপোনাৰ কলেजेस আছে যোৰ পৰা তেখেতৰ ইতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে प्रति सेमिस्टर टिकट फर्स्ट रैंकत আছে स्पार्टा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपना दैट इज द रिकॉर्ड सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जैसे और मैं चीज़ बताऊं जो जंत्रा जी ने बताया कि जैसे लोग स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं लाइक कोई कॉलेज है वो बहुत हाई फाई है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा है सब कुछ
AC लगे हुए हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि एक बार स्टूडेंट इंजीनियरिंग अगर कंप्लीट कर ले तो उसके बाद इफ़ ही इज़ एबल टू सस्टेन हिज लाइफ और नॉट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जी हाँ. और यही कारण है कि हम लोग, हमारे यहाँ से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम स्कॉलरशिप देते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, 12th में 92-95% स्कोर करते हैं, गरीब हैं, हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं. एंड सम ऑफ दो स्टूडेंट्स हैव डन एक्सीडिंगली वेल. वो एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है उनका, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপ পাব তেওঁলোকে পিছৰ সময়খিনি আৰু বেছি ভালদৰে পঢ়াৰ কাৰণে উৎসাহ পায় বা আগলৈ যাব পাৰে, আৰু যাৰ মানে পইচা পাতি কম থাকে তেনেকুৱা সেইখিনি এটা বহু সহায় হয় নহয় জানো, बहुत हेल्प होता है उसमें. स्कॉलरशिप तो देना ही चाहिए. देखिए एजुकेशन सोशल कॉज होता है, इट इज़ नॉट फॉर अर्निंग मनी, इट इज़ गिविंग बैक टू द सोसाइटी. अगर आप टैलेंट को एनकरेज करेंगे आगे बढ़ने के लिए तो अल्टीमेटली वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एक नेशनल कॉज में बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है. सो ये तो हेल्प तो करना ही चाहिए. নিশ্চয়. আৰু সুজিতা, এই বছৰ আপোনালোকে কিমান ষ্টুডেণ্ট পঠিয়াইছে বাহিৰলৈ? लास्ट ईयर 2013-14 में हम लोग हमारे मेडिकल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 78 स्टूडेंट गए हैं हमारे इंडिया और एब्रोड. 78. वाह, बहुत बढ़िया. चलिए, थैंक यू. और इंजीनियरिंग में 150 स्टूडेंट थे हमारे, और अदर्स कोर्स के लिए मैनेजमेंट, BBA, अप्रॉक्सीमेटली 40 स्टूडेंट. ये भी बहुत बढ़िया. चलिए, थैंक यू. আৰু গতিকে ইমানখিনি ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া বাহিৰত গৈ পঢ়িব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ গাইডেঞ্চ আছেই, ইমান সুন্দৰকৈ আপোনালোকে গাইড কৰে, গতিকে বিপথে যোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে. নিশ্চয় ষ্টুডেণ্ট এটা বাহিৰলৈ গৈ ভাল হৈয়ে ওলাই আহিব मैडम एवरी टाइम. আৰু আপোনালোকে সেইটো খবৰ ৰাখে নিশ্চয়. वही बोल रहा हूँ मैं, एवरी टाइम हमारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में होते हैं. इवन आज भी, आज का ही बताऊँ, हमारा एक स्टूडेंट बिहुआ मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना में पढ़ता है, उसका ATM कार्ड तक भेजना था, उसकी मम्मी ने मेरे पास भेजी हैं. उनकी मम्मी से मेरे अच्छे, मतलब वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और उसका ATM कार्ड भी आज मैं मतलब उसका मतलब कुरियर में डाल के आया हूँ इधर. तो हम लोग सारा मतलब उनका जो भी है वहाँ का क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहते हैं. बच्चे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है. নিশ্চয়. আৰু হিমাংশু শৰ্মা, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিল যে ষ্টুডেণ্টে যেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু কি কষ্ট কৰিব লাগিব, আৰম্ভণিৰ পৰা কি কষ্ট কৰিব, मतलब 10th से ही मतलब अपने आप को तैयारी करना पड़ता जी, बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट आजकल तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इवन मैं तो ये कहूँगा 8th और 9th से ही स्टूडेंट को टारगेट अपना सेट कर लेना चाहिए कि उसको आगे, और ये मतलब गार्जियन को ध्यान में रखना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. और ये भी ज़रूरी है कि घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट हो और स्टूडेंट को, उस बच्चे को पूरा सपोर्ट हो, उसके पेरेंट्स को उसके साथ रहना चाहिए कि उसका जो इंटरेस्ट है उसमें उसको हेल्प करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट ला के देगा. मतलब घर के आदमी को पूरा ध्यान देना है. वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट, मैं भी अगर कुछ हूँ तो अपने माँ बाप के सपोर्ट के कारण हूँ. सो इट इज ट्रू विथ एवरी पर्सन. बहुत बढ़िया बात है. গতিকে আপোনালোকে ইমেজ কনসালটেন্সিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি নিজকে আৰু বহু আগুৱাই লৈ যাব পাৰে. আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে বাহিৰত, আপুনি যদি পঢ়িবলৈ বিচাৰিছে, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত হওক বা এব্ৰড য'তেই পঢ়িবলৈ নিবিচাৰক কিয়, আগতীয়াকৈ আপুনি ইমেজ কনসালটেন্সিৰ সৈতে এবাৰ যোগাযোগ কৰিব. আমালৈ আৰু এটা ফোন আছে, ফোনটো লৈ লৈছোঁ. হেল্ল'. হয় বাইদেউ, নমস্কাৰ. নমস্কাৰ, মই মৰিগাঁৱৰ পৰা কৈছিলোঁ. হয়, আপোনাৰ নাম কওক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কওকচোন, কি জানিব বিচাৰিছে? হয়, মই মোৰ নাম ৰীতা ডেকা. ৰীতা ডেকা, হয়. হয়, মই মানে MBA কোৰ্সটোৰ বিষয়ে অলপমান জানিব বিচাৰিছিলোঁ. MBA সম্পৰ্কে? হয়, NDA. MBA আপুনি কৰিব বিচাৰিছে নে অন্য কোনোবাই কৰিব বিচাৰিছে? হয়, মোৰ ল'ৰাই কৰিব বিচাৰিছে. আপোনাৰ ল'ৰাই? হয়, ঠিক আছে. MBA কৰিব বিচাৰিছে? গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈ গया क्या? हाँ, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে? গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হোৱা নাই, তেখেতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ ক্লাছ কৰি আছে. হয়, তেখেতৰ সেই বিষয়ে অকমান, হয়, তেখেতৰ বিষয়ে অকমান জানিব বিচাৰিছিলোঁ. हायर सेकेंडरी कर रहे हैं तो अभी तो मतलब MBA नहीं हो पाएगा उनका. हायर सेकेंडरी के बाद BBA होगा, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो इंटीग्रेटेड MBA देती हैं, BBA कम MBA, तो आप वहाँ के लिए कर सकती हैं. बेटर ये होगा कि उनको BBA कराइए, ठीक है, और BBA के बाद में MBA में भेज सकती हैं, क्योंकि BBA MBA ठीक रहेगा. इंटीग्रेटेड MBA अभी नया कॉन्सेप्ट है, पता नहीं उसका मतलब इंडस्ट्रीज में क्या स्कोप रहेगा, अभी ऐसा कुछ रिसर्च नहीं आया सामने. এতিয়া তেওঁ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰাৰ পাছত BBA পঢ়ি লয়. BBA अच्छा रहेगा, या ग्रेजुएशन करवाइए कंप्लीट, उसके बाद में आप MBA में उनको भेजिए. और अगर पॉसिबल हो तो कभी ऑफिस आइए, फिर बताऊंगा मैं आपको. निश्चय. इमेज कंसल्टेंसी सुजिता, अपनी एड्रेस तो एबार কৈ দিয়ক. हाँ, मेरा एड्रेस है हाउस नंबर 18 नामघर पथ 2nd, नामघर पथ 2nd, रुक्मिणी नगर, अपोजिट BSNL ऑफिस, वायरलेस दिसपुर, गुवाहाटी. ओके. গতিকে এই ঠিকনালৈ আপোনালোকে আহিব. আৰু ফোন নম্বৰটো আছে, ফোন নম্বৰ টিভি স্ক্ৰীনত আপোনালোকে फोन कर सकते हैं 24 आवर कभी भी. हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट लोग विजिट कर सकते हैं www.imageconsultancyindia.com. ओके.
मेडिकल के स्टूडेंट के लिए अलग वेबसाइट है www.mbbsstudy.com। ओके, ये लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आजिकाলি দেখা যায় এই মেডিকেলৰ কথা ওলাওঁতে মোৰ মনত পৰিছে যে বহুত মানুহ মেডিকেলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে। जी जी, নহয় জানো? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টসকলে কিমানখিনি পঢ়া শুনা কৰিব বা পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকুৱা লাগিব তেওঁলোকৰ? जी सबसे पहले तो मेडिकल के लिए क्या है कि जो परसेंटेज का आपने पूछा, नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है 50% उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसको लेना पड़ेगा। इंग्लिश पास होना पड़ेगा जनरल स्टूडेंट्स के लिए। SC ST OBC है उसके लिए 40% का नॉर्म्स है। लेकिन इससे होता नहीं है। मेडिकल करना है तो बच्चे को, मैंने पहले ही बोला कि बेस उसको कंप्लीट करना होगा। उसको ये श्योर करना पड़ेगा अपने आप से कि 10th और 12th में अच्छा मार्क्स लेके आए। आज मेडिकल के लिए इंडिया में क्या है कि मतलब डॉक्टर्स की बहुत कमी है। जो रेशियो है मतलब 125 करोड़ का जनरेशन है हमारा, 125 करोड़ हम लोग हैं, जनरेशन सॉरी, हम लोग 125 करोड़ है हमारी कैपेसिटी। 125 करोड़ में डॉक्टर बहुत कम है। डॉक्टर इतना कम है कि अपने यहाँ डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। डॉक्टर तो बनना बच्चे चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है बनाए, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, मतलब मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम होने के कारण बच्चे को चांस नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम आता है बच्चे को। तो इनको श्योर करना पड़ेगा बच्चे को कि वो टॉपर रहें, जब जाके उनको सीट मिलेगा। अदरवाइज फिर उनके लिए वही ऑप्शन है हम लोग 100% मिलने का 100% निजके पूरा तैयारी करी ले बोले। हाँ, करना पड़ेगा। अदरवाइज एक चांस है अभी क्या है कि एक बहुत अच्छा मतलब आपको ऑप्शन है जो फॉरेन में अभी हो रहा है, जैसे चाइना से हो रहा है MBBS, आपको रशिया से होता है, किर्गिस्तान से होता है, यूक्रेन से होता है, फिलीपींस से होता है, न्यूजीलैंड से, अदर्स कंट्रीज से भी होता है। तो वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं, मतलब लिस्टेड कॉलेज होते हैं। और सिलेबस जो है वहाँ पे अब्रॉड में जो भी चलता है, जैसे चाइना में, पर्टिकुलर चाइना में इंडिया का सिलेबस है, MCI का सिलेबस है इंडिया के। हाँ, टीचर भी यहाँ से जाते हैं, तो बच्चों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ से वो कर सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग भेजते हैं स्टूडेंट्स को, और उनके लिए ठीक रहता है। स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन है, और जो भी फीडबैक है क्वालिटी एजुकेशन। निश्चय। गतिके যিসকল ডাক্তৰ হ'ব বিচাৰিছে তেখেতসকলে আগতীয়াকৈ নিজকে ভালদৰে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাই যাতে তৈয়াৰ কৰে, কাৰণ পঢ়া শুনাত ভাল হ'ব লাগিব। বিশেষকৈ পঢ়াত সম্পূৰ্ণ যদি আপুনি 100% লাভ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি আগলৈ গৈ নিশ্চয় ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব। আৰু অকল MBBS নহয়, অন্যান্য ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব। হয়, देखिए 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा, जब ही जाके 100% का रिजल्ट मिलता है। हाँ हाँ हाँ, बेसिक्स तो आपको बेसिक तो क्लियर करना बेसिक क्लियर कर बोले। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिक्स शुड बी वेरी। हाँ हाँ, ये अपना प्रोग्राम चल रहा है, जो स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे, जी हाँ, जो अभी 10th के स्टूडेंट है, 11th के हैं, 12th में हैं, उनके लिए बहुत मतलब एक ही मैसेज मैं दूंगा कि 100% एजुकेशन में अपना एफर्ट लगाएं, उनको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये गारंटेड है, इसका गारंटी मैं दूंगा कि उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। They should also remember that there is no substitute of labor. आपको मेहनत तो करना ही है, मेहनत करना है। There is so much competition and day by day it is increasing. So if you have to excel, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। बाकी जो स्टूडेंट है আৰু এটা কথা জন্দিতা আপুনি কৈছিলে যে আমাৰ ইয়াত যেতিয়া পঢ়িবলৈ মানে ভাল যিবোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে বা ভাল কিবা ইনষ্টিটিউটত পঢ়িবলৈ হ'লে ডোনেশ্যনটো অলপ বেছিকৈ লাগে, কিন্তু আপোনালোকে বাহিৰত এনেকুৱা ঠাই বিচাৰি উলিয়াইছে য'ত মানে ডোনেশ্যন কম বা নালাগে এনেকুৱা নিচিনা, নহয় জানো? গতিকে এই কথাটো অভিভাৱকসকলে মনত ৰখাটো দৰকাৰ। আৰু গতিকে সেইখন আপুনি হয়তো বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিব, কিন্তু ইমেজ কনচালটেঞ্চিলৈ আহি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল গাইডেঞ্চ দিব সেইটোৰ সম্পৰ্কে, হয় নহয়? হয়, আমাৰ তালৈকে আহিলে আমি গোটেইখিনি আপুনি ডিটেইলছ আপোনাক বুজাই দিম। যেনেকৈ যে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ লাইক এতিয়া চাইনাতো আমাৰ ভেৰিয়াছ টাইপ অফ কলেজেছ আছে। আমাৰ পেকেজবোৰ ষ্টাৰ্টিং হয় 12 লাখৰ পৰা আপোনাৰ 20 লাখ। চ' তাৰ মাজত আমি চিলেক্ট কৰি দিম ষ্টুডেণ্টে কোনখনত গ'লে ভাল হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ, বিকজ খালি এডমিশ্যন ল'লেই নহ'ব, বস্তুটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। ইয়েৰলি এটা ফিজ থাকে, চ' সেইটো আপোনাৰ কণ্টিনিউটি কৰিব লাগিব। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ তাতে আহিলে হ'ল, যেনেকৈ আমাক ছাৰে কৈ দিছে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো, তাতে আহিলে আমি গোটেইখিনি আপোনাক ইন ডিটেইলছ বুজাই দিব পাৰিম। জন্দিতা, আপোনালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা? হয়, এডমিশ্যন প্ৰচেছটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল যোনটো ষ্টুডেণ্টে যেনেকৈ ক'লে ছাৰে 50% মাৰ্কছ মিনিমাম লাগিব, ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি এণ্ড উইথ ইংলিছ পাছ। চ' লাইক ওৱান্স দ্য ষ্টুডেণ্ট কামছ টু আ প্লেচ, আমি ষ্টুডেণ্টক সুধি লওঁ তেওঁলোকৰ কোনটো অফ কলেজ যেনেকুৱা হয়, ইউনিভাৰ্চিটি। চ' আমি এডমিশ্যনছবোৰ তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছবিলাক প্ৰথমে লওঁ। চ' তাৰ কাৰণে মিনিমাম এটা আমাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ দিয়াৰ পাছত আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ছিটটো বুক হৈ যায়। চ' বুকিং হোৱাৰ পিছত আমি তেখেতলোকৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আমি পঠিয়াই দিওঁ আমাৰ যোনটো অথৰাইজ চেণ্টাৰ বা যোন আমাৰ কনচাৰ্ণ পাৰ্চন থাকে। চ' তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ এখন
লেটাৰ এখন আহে এডমিশ্যন লেটাৰ এখন অহা হয় চ' তাৰপিছত যেনেকৈ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক্টৰ্ছ আহি যায় যেনেকৈ পাছপৰ্টখন বনোৱাৰ কাৰণেও আমি বিশেষ ধৰণৰ সুবিধা কৰি দিওঁ ষ্টুডেণ্টক তাৰপাছত যেনেকুৱা ভিছা হয় আৰু আপোনাৰ এয়াৰ টিকেটছ গোটেইখিনি আমি কৰি দিওঁ চ' সেইটো কাৰণে এটা মিনিমাম এমাউণ্ট এটা ইণ্ডিয়াত পে' কৰিব লাগিব চ' সেই হিচাপে আমি ষ্টুডেণ্টক লগত লৈ যোৱা হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা লাইক ষ্টুডেণ্টক অকলে পঠিয়াই দিয়া নহয় ছাৰ যেতিয়া এডমিশ্যন ল'বলৈ যাব বা যেতিয়া প্ৰথম যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবা যাব ছাৰ যাব মিষ্টাৰ সুজিত কুমাৰ পাঠক বা আমাৰ আৰু আছে আমাৰ লগৰ অফিচৰ মানুহ চ' তেওঁলোকে গৈ দি থৈ আহে একেবাৰে অফিচত লাইক তাতে গৈ ষ্টুডেণ্টে কি হয় তাতে যেনেকৈ লাইক তেওঁলোকে এক্সামিনেশ্যনছবোৰ হয় পাৰ উইকলি বা পাৰ মান্থলি চ' তাৰ যোনবিলাক ৰিপৰ্ট হয় সেইবোৰ আমাৰ তাৰলৈকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আহিব তাৰপিছত গাৰ্জেনক আমি জনাম প্ৰথমতে আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকিব লাইক ইট ইজ নট অনলি দ্য চেক অফ টেকিং অৰ গিভিং দ্য এডমিশ্যন বাট ইট ইজ দ্য এণ্টায়াৰ প্ৰচেছ ফৰ 5 years লাইক 5 বছৰলৈকে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছে কি কৰা নাই গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট আমাৰ তালৈকে আহি যায় হিমাংশু শৰ্মা তাৰ পঢ়া শুনাৰ এটমছফিয়াৰবোৰ কেনেকুৱা হয় কেনেকৈ মানে ষ্টুডেণ্টসকলে সুবিধা পায় তাত কওকচোন বাহিৰত গ'লে बाहर में कैसे उनको मतलब ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि दोज आर वेरी हर्टिंग टू नो मैं द रीज़न आई हैव कम हियर टू नॉर्थ ईस्ट इज दैट आई रियली वांट टू वेलकम द स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू कम टू भोपाल এই সম্পর্কে আমি কথা পাতিম আমি ফোন এটা লৈ লৈছো এখিনতে হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো কওকচোন মই যোৰহাটৰ পৰা ক'লো যোৰহাটৰ পৰা কৈছে ইন্দ্ৰজিৎ প্ৰসাদ ঠাকুৰে ক'লো মোৰ ল'ৰাটো কলিকতাৰ জৰ্জ কলেজত BBA কৰি আছে কি পঢ়ি আছে BBA কৰি আছে কলিকতাৰ জৰ্জ কলেজত হয় আচ্ছা এতিয়া মই তাক MBA কৰাব খুজিছো মোক অকমান মানে চাইছে তাক MBA ক'ত কৰিলে ভাল হয় ওকে BBA পঢ়ি আছে MBA ক'ত পঢ়িলে ভাল হ'ব MBA তো আপুনি ক'ত কৰাব বিচাৰিছে আপোনাৰ কি নিৰ্ধাৰিত কিবা আছে নে ভবা চিন্তা হেল্ল' সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে তথাপি সুজিত আপুনি কৈ দিয়ক যে BBA পঢ়ি আছে MBA ক'ত পঢ়িলে ভাল হ'ব BBA पढ़ रहा है बच्चा उनका MBA के लिए चाहते हैं सबसे पहले तो उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा वो कहाँ पढ़ाना चाहते हैं जी हाँ उनको इंडिया में पढ़ाना है या एब्रोड करना है इंडिया में पढ़ाना है तो फिर कहाँ मतलब उनको किस रीजन में साउथ में कराना है नॉर्थ में कराना है ईस्ट में कराना है वेस्ट में कराना है डिफरेंट कॉलेजेज हैं अच्छे कॉलेजेज हैं उनके प्रोसीजर अलग अलग है एडमिशन के कुछ का जैसे स्टेट एग्जामिनेशन के थ्रू होता है कुछ का कैटमैट के रैंकिंग के थ्रू होता है कुछ कॉलेजों में एडमिशन जो होता है उनका अपना पर्सनल एग्जामिनेशन होता है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद के एग्जामिनेशन लेते हैं तो इस प्रोसीजर से उनको निकलना पड़ेगा तो बेटर उनके लिए रहेगा कि वो एक बार हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट करें हमारे काउंसलर से कॉन्टेक्ट करें आ सकते हैं तो आ जाएं अदरवाइज वो फोन पे ही बात कर सकते हैं तो उनके लिए আৰু এটা ফোন আছে ফোনটো লৈ লৈছো হেল্ল' হয় নমস্কাৰ মই দুলিয়াজানৰ পৰা কৈছিলো ক'ৰ পৰা কৈছে দুলিয়াজানৰ পৰা কওকচোন আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কওক কি সুধিব বিচাৰিছে হয় মই মানে হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছিলো মানে এতিয়া কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কৰিলে ভাল হ'ব সেইটো মানে আমি জানিব বিচাৰিছিলো होटल मैनेजमेंट হয় कर रहा है या करने वाला है करेगा ठीक है इनके लिए होटल मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन बहुत अच्छा है आपके गुवाहाटी में भी होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं हम लोगों के पास मतलब जिससे हमारा टाई अप है तो आप गुवाहाटी में IHM जा सकते हैं गुवाहाटी में अच्छा कॉलेज है होटल मैनेजमेंट का IHM आप वहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है या उसमें कोई एंट्रेंस देना पड़ता है नहीं वो आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है वो लोग अपना एक GDPI लेता है बच्चे से साथ एक इंटरव्यू छोटा सा होता है एडमिशन हो जाता है और आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है गुवाहाटी में आपको अगर गुवाहाटी में रखना चाहते हैं तो है होटल मैनेजमेंट कॉलेज AIHM करके है आप वहाँ जा सकते हैं और भी कॉलेजेज हैं यहाँ पे तो आप मेरे ऑफिस में आएंगे बता दूंगा बाकी आपको यहाँ से बाहर जाना है उसके लिए भी मैं दे दूंगा कलकत्ता में भी है NIHM है कई कॉलेजेज हैं कलकत्ता में भी तो बेटर है कि आप मेरे पास आ जाएं ऑफिस आ जाएं मैं आपको मतलब आपके कैसा क्या रहेगा वो सब कुछ मैं बता दूंगा और दुलियाजान से तो बहुत दूर तो है नहीं गुवाहाटी आप आ सकते हैं या फ़ोन पर बात कर लीजिएगा बाद में ठीक है ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে টিভি পৰ্দাত দেখা পাইছে 9435344388 এই নম্বৰত ফোন কৰি আহিব ইমেজ কনচালটেন্সিলৈ হোটেল মেনেজমেণ্ট তেওঁ পঢ়িব বিচাৰিছে
আমি কথা পাতি আছিলো জি তো what I was saying is that I would like to welcome the students of Northeast because Bhopal is one of the most beautiful and very peaceful cities, and it is very important, like you said, the environment should be very much suitable for education. Bhopal has the maximum number of education institutes in Madhya Pradesh, so it is an educational hub. And the students from Bhopal, I'll just quote an example. Last year, IES topper, all India IES topper, the girl was from Bhopal. Okay. So the environment is really very, very soothing, and there are all the facilities for the students so that they can concentrate on their studies without any obstacle. And we make sure that even in our college, what system we are following is that I am the chairman of the college. My phone number is there with each and every student. So just in case if the student or his or her parents wants to talk to me, they can directly contact me without any channel or anything. So that is the kind of hierarchy we are maintaining. Yes. Ama aru eta phone ase, phone tu loisu. Hello. Namaskar. Namaskar. I am Saad Ahmed. Hi. Talking from Saigaon. Saigaon পৰা কৈছে। মই সগৰ পৰা কৈছো। হয় কওক আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক। মই জানিব বিচাৰিছো বুন্দেলখণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ ডিসটেন্স এডুকেশ্যনৰ কেনেকুৱা সিস্টেম তাত মানে বিএ ডিগ্ৰী বা আপোনাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে সেইটো মই জানিব বিচাৰিছো। কি ইউনিভার্सिटी কথা কলে আপনি? बुंदेलखंड। ओके। आप बेटर है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आप देखें, सर्च करें और वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, उन लोगों का हेल्पलाइन नंबर होगा, आपका डिस्टेंस एजुकेशन का डिपार्टमेंट का होगा। अगर है डिस्टेंस एजुकेशन, मुझे इतना ये मालूम नहीं है कि बुंदेलखंड में डिस्टेंस एजुकेशन है या नहीं है, इतना मैं श्योर आपको नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है ये मैं जानता हूँ। आप उनके हेल्पलाइन पर फ़ोन करके एक बार पता लगा सकते हैं, वो बता देंगे कहाँ से एडमिशन होगा, कहाँ क्या होगा, बता देंगे आपको। धन्यवाद। আমি কথা পাতি আছিলোঁ হিমাংশু আপোনাৰ সৈতে আৰু এটা কথা যে তাত পঢ়া শুনা কৰিলে, কমপ্লিট কৰিলে, যে আপোনালোকে যিটো খণ্ডতে নপঠিয়াওক কিয় তাৰপিছত মানে 100% ক'ত হেৰি হ'ব তেওঁলোকৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সহায় হ'ব? नौकरी प्लेसमेंट। हाँ। See, what we are doing is because जो students हमारे पास आते हैं वो हर लेवल के होते हैं, कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे नहीं होते हैं। So what we do is right from the very first semester हम उनको प्लेसमेंट के रिलेटेड क्लासेस देते हैं। फॉर एग्जांपल उनके एप्टीट्यूड स्किल्स को हम डेवलप करते हैं, उनके ग्रुप डिस्कशन स्किल्स को, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सारी हम काम करते हैं और वी हैव हायर्ड एक्सपर्ट्स फॉर दैट। हम लोग एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर किए हुए हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, तो जब वो स्टूडेंट फाइनल ईयर तक आता है तो पिछले 3-4 सालों के अंदर वो इतना बार उसको हम उस प्रोसेस से निकाल देते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं, आई कैन डू दैट। और इसीलिए ये रीज़न है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने भोपाल में इस सीजन में जो कैंपस करवाया है हमारे यहाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस वर फ्रॉम आवर कॉलेज। So there is a company उसमें एक दिन में पॉलिश करते हैं। एक दिन सिंगल डे में 44 सिलेक्शंस किए थे हमारे कॉलेज से। So that was a full branch, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पूरा ब्रांच ही उन्होंने रिक्रूट कर लिया था। So that is because कि पहले साल से स्टूडेंट्स के प्रिपेयर करवाते हैं कि वो फाइनल तक आते उनको कोई टेंशन ना हो दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा। আৰু এটা ফোন আহিছে, লৈ লৈছো। হেল্ল'। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ, বেলতলাৰ পৰা কৈছে আপুনি? মই জানিব খুজিছোঁ তাৰমানে কি মোৰ ল'ৰাই এবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী দিছে, আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত সি BR বা এনেকুৱা কৰিব খুজিছিলে, বাহিৰত তাৰ স্কোপ কেনেকুৱা আৰু ক'ত গ'লে ধৰক স্কলাৰশ্বিপ আদি পাব পাৰি। आर्किटेक्ट कराना चाहते हैं, उसका सब्जेक्ट क्या है हायर सेकेंडरी में? हायर सेकेंडरी सब्जेक्ट क्या है? আপুনি টিভিৰ ভলিউম কমাই লওক। হেল্ল', টিভিৰ ভলিউমটো কমাই লওক আৰু কওকচোন সাবজেক্ট কি আছিলে? সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, लेकिन होगा माने की सब्जेक्ट होले भाल है। देखिए इसके लिए अगर मैथमेटिक्स बढ़िया है स्टूडेंट का, मैथ्स भाल हो फिर वो आर्किटेक्ट ले सकते हैं। अगर मैथ्स अच्छा नहीं होगा, ड्राइंग का अच्छा नहीं होगा, हम सबसे पहले देखेंगे बच्चे का ड्राइंग कैसा है, डिजाइनिंग कैसा है। ड्राइंग अगर ड्राइंग का
क्लासेस बच्चों का स्टार्टिंग होता है, तो ड्राइंग अच्छा हो तो आर्किटेक्ट में दे, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ड्राइंग नहीं होगा तो फिर उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बाद में बच्चे को रिकवर करने में दिक्कत होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए, होना ही चाहिए, ये दोनों इमेजिनेशन पावर ये सब होना चाहिए। इनफैक्ट उसका टेस्ट भी होता है, नाटा एक होता है, नाटा होता है, तो नाटा उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब आर्किटेक्ट में उसका एडमिशन होगा। ये देखना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए अगर बच्चा पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होगा, तो वो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया हो सकता है, सिविल भी अच्छा हो सकता है। आर्किटेक्ट में क्या है कि उसका सिंगल स्कोप है, बहुत ही बढ़िया होता है उसे ब्रांच हो, लेकिन नाटा क्लियर करना पड़ेगा उनको, बच्चे को, और उनको देखना पड़ेगा ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग इज मोर वर्सेटाइल एक्चुअली, बिकॉज इफ यू आर डूइंग बीआर आपका एक लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क हो जाता है, बट इफ यू आर डूइंग सिविल इंजीनियरिंग स्कोप बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ एमपी व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको आर्किटेक्ट के भी राइट्स दे दिए हैं, सो दे कैन इवन वर्क एज बीआर्स। तो सिविल इंजीनियर इज मोर बेटर एंड वेरी वास्ट ब्रांच, तो इसलिए अगर वो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं तो दे कैन ऑलवेज गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग। আপোনালোকে পঠিয়াইছে নে আগতে ইমেজ কনসালটেন্সি ফালৰ পৰা? जी, हमारे पास अगर आते हैं तो उनको मैं अच्छा, हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं, हम लोग हैं, बैठ के उनको अच्छा गाइडलाइन दे देंगे, कौन सा कॉलेज बढ़िया होगा, क्या होगा, उनके लिए वेलकम है, आए हमारे पास। जी हाँ, গতিকে হয়, গতিকে নিশ্চয় আপুনি আহি এবাৰ কথা পাতি ল'ব ইমেজ কনসালটেন্সিলৈ। আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ। হেল্ল', নমস্কাৰ, কোনে কৈছে আপুনি? মই শিৱসাগৰৰ কৈছো, মমি চেতিয়াই কৈছো। মমি চেতিয়া, লাইভ প্ৰগ্ৰামটো চাই আছো আৰু তাত মানে জানিব বিচাৰিছো এমবিএ এক্সামৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিছো। এমবিএ আপুনি কৰিব বিচাৰিছে নে আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা? না না, মোৰ লৰাই কৰিব বিচাৰিছে। হয়, গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে নে? নাই, গ্ৰেজুৱেচন কৰা নাই, হি হাই সেকেন্ডাৰী এবাৰ সেকেন্ড ইয়াৰ পঢ়ি আছে। হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ পঢ়ি আছে। সুজিতা, আমাৰ আগতো এনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা আহিছিলে। सेकेंड ईयर के साथ वही उन्हीं का है। सेकेंड ईयर के बाद वो ग्रेजुएशन में लेना पड़ेगा एडमिशन, आफ्टर ग्रेजुएशन ही एमबीए एडमिशन होता है। हायर सेकेंडरी के बाद एमबीए में एडमिशन नहीं होता है। बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो इंटीग्रेटेड एमबीए करवाते हैं, बीबीए प्लस एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए दोनों एक साथ। हाँ, एक साथ। तो उसके लिए फिर मैं उनको बता दूंगा, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस है आपके पास तो देख लीजिए, अदरवाइज नंबर नोट कर लीजिए 9435344388। आप ऑफिस आइए, बता दूंगा मैं आपको कैसे क्या होगा। ধন্যবাদ আপোনাক। আৰু যে আপুনি ক'লে যে বিবিএ এমবিএ দুটা একেলগতে, যেতিয়া একেলগতে যেতিয়া পঢ়িব তেতিয়া পঢ়াৰ ষ্ট্ৰেছটো বহুত বেছি হয়, নহয় জানো? हाँ, बेसिकली क्या है कि কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা কাম থাকে, এনেকুৱা পোষ্ট থাকে বা এনেকুৱা টাৰ্গেট থাকে যে মই এইটো পাবই লাগিব, এইখিনি কৰিম, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কষ্ট কৰি হ'লেও সিমানখিনি ডিগ্ৰী লোৱা যায় বা সেইখিনি, নহয় জানো? গতিকে আপোনালোকে তাত যোগাযোগ কৰি দিব পাৰে সেই সম্পৰ্কেও। জি জি, হয়, ইমেজ কনসালটেন্সিলৈ আপোনালোকে আহিব আৰু কথা পাতি ল'ব। তাত বহুতো ফেকাল্টিজ আছে, বহুতো গাইডেন্স দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গাৰ্জেন আছেই তাত। গতিকে আৰু ফ্ৰী কাউন্সেলিং কৰা হয়। শ্ৰীমতী জন্দিতাই কৈছে, জন্দিতা এম বৰুৱা, তেওঁ কৈছে যে ফ্ৰী কাউন্সেলিং কৰা হয়, আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাব পাৰিব। আৰু সম্পূৰ্ণ গাইডেন্স দি পেলাই বাহিৰলৈ এগৰাকী ষ্টুডেণ্টক পঠিওৱা হয় আৰু সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ ৰখা হয়, পঢ়া মানে এডমিশ্যনৰ দিনৰ পৰাই একেবাৰে শেষৰ দিনলৈকে, নহয় জানো? আমালৈ আৰু এটা ফোন আছে, ফোনটো লৈ লৈছোঁ। হেল্ল', মই গুৱাহাটী হেৰাবাৰীৰ পৰা কুশলজিৎ কুমাৰী কৈছিলোঁ। হয়, কওক আপোনাৰ। মোৰ ছোৱালীয়ে কোচিং কৰি আছে বাহিৰত, ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি লৈ। তেওঁ এতিয়া মেথছো বাদ দিছে। মেথছ বাদ দিছে? মেথছ বাদ দিছে। এতিয়া পঢ়িব বিচাৰিছে কি? মেডিকেলৰ কাৰণে কোচিং কৰিছে। মেডিকেলৰ কাৰণে, ওকে। আচ্ছা, মই এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ, মেডিকেলৰ বাদে আকৌ বায়'লজি লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিউচাৰ স্কোপ আছে বাৰু, কৈ দিব নেকি বাৰু? बायोलॉजी, मेडिकल के लिए तो बायोलॉजी चाहिए ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए मेडिकल के लिए। उसी में उसको एलिजिबिलिटी लाना पड़ेगा अपना, बायोलॉजी चाहिए मेडिकल के लिए। इंजीनियरिंग में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बायोलॉजी मेडिकल के लिए चाहिए। और कोचिंग अभी किस क्लास में है बेटी आपकी? क्लास 12 में है। 12 में है, ठीक है। तो उसको अभी से आप कोचिंग करवाइए थोड़ा सा बढ़िया, उसको बायो और केमिस्ट्री का प्रिपरेशन ठीक ठाक करवाइए, उसका कोचिंग दीजिए, देखिए कैसा क्या है। और AIPMT एग्जामिनेशन ये सब होता है आपको, ये सब में मेरा क्वेश्चन ये है, अभी वो मेडिकल के लिए कोचिंग कर रहा है, ठीक है, मेडिकल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बायोलॉजी लेके उसका फ्यूचर में क्या कौन सा सब्जेक्ट में जा सकता है? सॉरी, अच्छा, बायोलॉजी लेके मेडिकल नहीं मिलने के बाद वो BDS कर सकती है, उसके बाद में वो फार्मेसी कर सकती है, नर्सिंग कर सकती है, देन उसके बाद में बायोलॉजी का स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है।
काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद में वो मैनेजमेंट में भी जा सकती है, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकती है, BSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकती है, ये सब है, स्कोप अच्छा है उसका। धन्यवाद আপোনাক। আৰু সুজিত আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, বাহিৰত যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টবিলাক পঠিয়াব, আমাৰ ইয়াৰ খাদ্য যদি নৰ্থ ইষ্টৰ আপুনি ষ্টুডেণ্ট কিছুমান পঠিয়াব, আমাৰ ইয়াৰ খাদ্য আৰু বাহিৰৰ খাদ্য ডিফাৰেঞ্চ বহুত থাকে নহয় জানো? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টসকলে কেনেকৈ খোৱা মেলা কৰিব বা তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কিবা থাকিবনে সুবিধা? ये एक तो मैटर है, इसीलिए हम लोग जहाँ भी सपोज इंडिया में कहीं भी हम लोग बच्चे भेजते हैं, स्टूडेंट्स को भेजते हैं, किसी भी कॉलेज से हम लोग टाई अप करते हैं, तो हमारा ये सबसे पहला उनके पास एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि जब आप हॉस्टल तो दे रहे हो तो एकोमोडेशन जब हम कर रहे हैं, बच्चे को एकोमोडेट कर रहे हैं हॉस्टल में, तो हम पहले उनसे कंडीशन रखते हैं कि फूडिंग के लिए क्या रहेगा। इनफैक्ट मैं स्पार्टा का आपका एग्जांपल दूं तो फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने हॉस्टल ही बिल्कुल सेपरेट करके रखा हुआ है, सो दैट क्योंकि उनका वो नॉन वेजिटेरियन थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, राइस थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, तो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव मेड सेपरेट फैसिलिटीज, क्योंकि जब तक यू नो इफ यू फील हंग्री एट स्टोमक यू कैन नॉट स्टडी। বাহিৰত যদি লাইক আপুনি যায় চ' তাতে কি হয় হোষ্টেল একমডেশ্যনছটো থাকে বাট ফুডিংটো ইনক্লুড নহয়। তাত ফুডিঙৰ কাৰণে দুটা অপশ্যনছ থাকে, লাইক আপোনাৰ যোনবিলাক হোষ্টেল ৰুম এলট কৰা হয় আপোনাৰ 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ নিচিনা এলট কৰা হৈছে, লাইক দুজন ষ্টুডেণ্ট থাকিব পাৰে, এটা কিচেন, চ' ষ্টুডেণ্টে যদি নিজে বিচাৰে তেওঁলোকে বনাই খাব পাৰে, বা যোনটো কেণ্টিনত আমাৰ ইণ্ডিয়ান কুক থাকে স্পেচিয়েলি ফৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছ, বিকজ ফুড ইজ আ মেইন ফেক্টৰ। আৰু আমাৰ অকণমান নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে আমি কওঁ অলপ লাইক পিপলছ আউট হিয়াৰ অলপ স্পাইচি খোৱাটো অলপ বেছি ভাল পায়, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি সুবিধা আমি প্ৰভাইড কৰি দিওঁ। পুৰা কেয়াৰ करता है। হয় সুজিতা আৰু হিমাংশু শৰ্মা, জন্দিতা এম বৰুৱা, আমি বহুখিনি কথাই পাতিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যে আৰু বহু কথাই ৰৈ গ'ল, সময় বহুখিনি কম, গতিকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আমি বহুখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যাতে এইখিনিৰ পৰা বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰে তেওঁলোকে, আৰু আপোনালোকে বিশেষভাৱে জানিবৰ কাৰণে ইমেজ কনচালটেঞ্চিৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব নিশ্চয়। আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰাৰ সময় হৈছে, গতিকে আটাইকেইগৰাকী অতিথিবৃন্দলৈ ধন্যবাদ জনাই মই আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।